أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر برائی اور شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ ہم لوگوں نے رمضان پریپریشن سیریز کا آغاز کیا ہے۔ پری رمضان پریپریشن سیریز میں ہم لوگوں نے ڈفرینٹ ٹاپکس میں ڈسکس کیا۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے کنیکشن بٹوین دا قرآن اینڈ رمضان ڈسکس کیا، جس کے اندر ہم اپنے رمضان کی پریپریشن کیسے کریں۔ ایکچولی ہم لوگوں نے جو رمضان ہے وہ ہمارے ایک روٹین سیٹ کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ ہمیں وہ تقویٰ کا وہ لیول اچیو کرانے کے لیے آتا ہے کہ ہم لوگ تھرو آؤٹ دا جو ہمارا ایئر ہے اس کو ہم لوگ اگین سے کس طرح سے پلان کر سکیں، ہم لوگ اپنی بری عادتوں کو کس طرح سے ختم کریں اور ایک ہیلدی روٹین سیٹ کریں، اور پھر تھرو آؤٹ دا ایئر اس کو جو ہے وہ لے کے چلیں۔ تو ایک رمضان ایک بہت ہی اچھا اور قدرتی طور پر اور بہت ہی اسلام کے رہنما اصولوں کو دیکھتے ہوئے ایک روٹین سیٹ کرتا ہے، ہماری ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم لوگوں نے فرسٹ سیشن میں یہ ڈسکس کیا، سیکنڈ میں ہم لوگ کس طرح سے اپنے رمضان کو پلان کر سکتے ہیں، ہم لوگوں اپنے رمضان کی روٹین کے اندر کون کون سی عبادات کر سکتے ہیں، ہم لوگوں نے وہ دیکھا۔ اور آج ہمارے ساتھ ہمارے جو ٹاپکس ہیں ان کے اندر ہے سنسیئرٹی ان فاسٹنگ، عبادات اینڈ اذکار، ہاؤ مچ قرآن ٹو ریڈ، اور جس کے لیے آج ہم لوگوں نے مدعو کیا ہے سسٹر سمرین ہاشمی کو وبرکاتہ۔ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج جس ٹاپک پہ ہم لوگوں نے بات کرنی ہے وہ ہے قرآن نور ہدایت قرآن و سنہ جو انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے تھرو آپ ڈفرینٹ اسپیکرز کو پہلے بھی سن چکے ہوں گے۔ آپ پلیز مجھے ڈاکٹر افضل بتائیے گا کہ میری آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے؟ کوئی بھی مجھے بتا دے کہ میری آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے، کسی قسم کی کوئی انٹرپشن تو نہیں ہو رہی آواز میں؟ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی سسٹر سیمی، آپ کی آواز کلیئر ہے الحمدللہ۔ جن کو آواز کلیئر نہیں آ رہی وہ کائنڈلی اپنا نیٹ ورک کنیکشن پہ چیک کریں۔ سیمی آپ کنٹینیو کریں۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اچھا، سلائڈ نمبر 2 چلا دیں، کیونکہ میں نے ابھی لنک شیئر کیا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا باقی یوزرس کو بھی جوائن کرنے میں۔ تو جب تک سلائڈ نمبر 2 میں جو قرآن پاک کی آیت ہے ہم وہ پلے کر لیتے ہیں، ماہ سیام کے ریلیونٹ۔ اچھا سیمی، وہ پلے نہیں ہو رہی میری طرف سے نا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اب ہم جو ہے یہاں پر سب سے پہلے جو ٹاپک ہے، اب اگر مجھے یہاں پہ جتنے بھی آڈینس ہے وہ مجھے میسیجز میں، چیٹ میں یا مائک آن کر کے جیسے بھی مجھے بتانا چاہے کہ آپ کے مائنڈ میں سنسیریٹی ان فاسٹنگ سے جو ہے وہ کیا سمجھ میں آتا ہے، کہ آپ کے مائنڈ میں کیا امیج بنتا ہے کہ جب ہم نے فاسٹنگ میں سنسیریٹی دکھانی ہے، سنسیئر ہونا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟
السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سنسیریٹی کا مطلب یہی ہے کہ وہ تو پورا سال ہی اپلائی تھے، لیکن رمضان میں اسپیشل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا اور عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا اور دعاؤں کی کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا اب یہاں پہ جو ہمارے پاس سنسیریٹی آتی ہے فاسٹنگ میں، سنسیریٹی کا جو ہے وہ ہم یہاں پر جو اردو مطلب لیتے ہیں وہ ہوتا ہے اخلاص، خلوص، کہ کچھ بھی چیز، کوئی بھی چیز جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اس کو اخلاص خالص ہو کے کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم نیکوکار ہو جاؤ، تاکہ تم رائٹیس ڈیڈس کرو، تم جو ہے وہ تمہارے اندر تقویٰ ہے اور تم اچھے اعمال کرو۔ اب یہاں پہ جو سب سے پہلے جو ہمارا ورڈ ہے یا ایھا الذین آمنو، ہم اس ورڈ پہ غور کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے ایمان والوں کے ساتھ مخاطب ہے۔ اب قرآن پاک کو اسٹڈی کریں اگر تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کے نام سے بھی مخاطب کیا ہوا ہے کہ انسانوں کو مخاطب کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ جو آپ کے اندر جو ایمان آ چکا ہے، اب ایمان ہم قرآن پاک کی باقی آیات اسٹڈی کریں کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کن کو مخاطب کیا ہے، تو وہ ہمارے پاس سورہ انعام کی آیت نمبر 82 آتی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا، ٹھیک ہے، کہ وہ ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا میں آپ کو مفہوم بتاتی ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنی پروٹیکشن میں لے لیا، اپنی سیکیورٹی میں لے لیا، اور وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ تو یہاں پہ ہمیں ایمان والوں سے وہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں جب ہم نے کوئی بھی اعمال کرنے ہیں، ایک کنسیپٹ ہمیں کلیئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جب ہم کوئی بھی اعمال کریں گے تو وہ ہمارے اعمال قابل قبول اللہ کے ہاں تبھی ہوں گے جب ہمارا اس کے پیچھے ہماری انٹینشن، ہماری نیت بالکل اللہ کی رضا ہوگی، اور ہم بالکل اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہے ہوں گے، اور ہمارے عقائد، ہمارا کنسیپٹ بھی بالکل ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آپ یہ سمجھ لیں، اس کو میں ایسے سمجھاؤں گی کہ لائک آپ لوگ پیپر دینے جا رہے ہو، ایگزام دینے جا رہے ہو، آپ کا ایگزام جو ہے وہ فار ایگزامپل اردو کا ہے، لیکن آپ نے پریپریشن کر لی ہے انگلش کے پیپر کی، آپ چاہے اپنا 200% انگلش کے پیپر میں لکھ کے آ جائیں، ٹھیک ہے، آپ نے انگلش کے پورے ایسے ایز اٹ از لکھ دیے ہیں، لیکن آپ کو کیا ہوگا، 0 مارکس ملیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا پیپر، آپ کا ایگزام اردو کا تھا۔ اسی طرح جب آپ اعمال میں ہر طرح سے آپ اچھے ہو جائیں، آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے کریں، آپ صدقہ کریں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ سب کچھ کریں، لیکن اس کے پیچھے جو آپ کی بیس لائن ہوگی اگر وہ ہی بہت زیادہ ویک ہوگی، آپ جو ہے وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہی نہیں ہوں گے، آپ کا خلوص صرف اللہ کی رضا نہیں ہوگا، آپ بالکل خالص ہو کے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اعمال وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ پلیز نیکسٹ سلائڈ کر دیں۔ تو اس میں جو ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے پاس سنسیئر ہونا اللہ تعالیٰ سے اور ہمارے عقائد میں سنسیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے پاس ابھی تک شاید تھوڑا سا انٹرنیٹ سلو ہے یا جو بھی وجہ ہے، نیکسٹ سلائڈ نہیں ہوئی ہے، تو پلیز آپ نیکسٹ سلائڈ کر دیں۔ سسٹر میں نے نیکسٹ سلائڈ کر دی ہے، شاید آپ کی طرف نیٹ ورک ایشو ہے، میں اس کو دوبارہ سے اسٹاپ کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ویزیبل؟ ہاں جی اب بالکل ٹھیک آ رہی ہیں، صحیح۔ تو اب ہمارے پاس جو ہے اسی ہم سورہ نام کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ سورہ نام میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کیا نشانی بتا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی زمین و آسمان کا مالک سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی بھی پارٹنرز نہیں بناتے، کوئی بھی پارٹنرز کو نہیں کرتے، اور اپنے ایمان کو کسی بھی اور طرح کے شرک کے ساتھ یا کسی بھی اور طرح سے جس کی دین کے اندر گنجائش نہیں ہے ان پریکٹسز کے ساتھ اپنے اندر اس ایمان کو جو ہے وہ
मिक्सअप नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हमें जो है वो एक मतलब समझ आता है सिंसेरिटी इन फास्टिंग का। ये हमारी बेस लाइन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। जब हमारी बेसलाइन स्ट्रांग हो गई है, हमारी बुनियादें मजबूत हो गई हैं, तो उसके बाद जो है, अब जो दूसरा जो बहन ने बताया था कि हमारे अंदर हम अमाल जो है वो बिल्कुल खालिस अल्लाह की रजा के लिए करें। हमारी बेसलाइन ठीक हो गई है, उसके बाद हमने वर्क करना है अपने अमाल की तरफ। तो अब प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दें कि उसमें जो है वो हम किस तरह से अपने अमाल को सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए जो है वो मुकम्मल ठीक कर सकते हैं। अब इसमें फास्टिंग इज मेंट टू इंस्टिल द वर्चुअल क्वालिटीज विद इन अस एंड इट्स एसोसिएटेड वर्चुअल्स, कि हम रोजा रखते हुए जितनी भी हमारी नेकी की जितनी भी हमारी क्वालिटीज हैं और उसके मुताबिक जितनी भी क्वालिटीज हैं, हम उसके अंदर जो है वो इखलास लेके आए, जिसमें हमारी बिल्कुल अल्लाह ताला की रजा शामिल हो। पहला जो है वो है कि आपने रियाकारी नहीं करनी। रियाकारी मतलब शो ऑफ नहीं करना किसी भी तरीके से, कि आपकी जो इंटेंशन हो, आप जो भी काम कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए हो। उसमें आपका किसी किस्म का दिखावा ना हो कि आप ये फलां शख्स के लिए कर रहे हैं। कि आप अगर आपकी आदत है आप सलाद के बाद 2 नफल पढ़ते हैं, तो आप देख रहे हो कि यार यहाँ पे लोगों की महफिल है, ज्यादा है, तो आप ज्यादा नवाफिल अदा करने लग जाएं। तो ये जो चीजें होती है ना, रियाकारी, ये इसकी बिल्कुल जो है वो गुंजाइश नहीं है। हमारे अमाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए होने चाहिए, सिर्फ अल्लाह ताला जो है खालिस अल्लाह के लिए होने चाहिए। फिर उसके बाद कई जगहों पे क्या देखा गया है कि जब कुछ लोग जो होते हैं वो रियाकारी से बचने के लिए क्या करते हैं, कि अगर उनकी आदत होती भी है ना 2 नवाफिल अदा करने की, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वो सलाद के बाद 2 नवाफिल अदा करते हैं, तो वो रियाकारी से बचने के लिए क्या करते हैं कि बिल्कुल वो नेक अमल करना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आपकी जो नीयत होती है ना, जो आपकी इंटेंशन होती है, वो आपकी बिल्कुल प्योर अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो हमारे दिलों के हाल तक को जानता है। ठीक है, तो जब हम अल्लाह ताला की रजा के लिए करेंगे तो हम उस नेक अमल को अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है हमारे दिल में क्या है, हम वो रिया के लिए कर रहे हैं या अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमने उस अमल को जो है वो कंटिन्यू करना है, क्योंकि सल्फ सालीन का एक वाकया आता है कि वो कुरान पाक पढ़ रहे थे, तो ऊपर से कोई आता है, शख्स आता है, तो वो कुरान पाक पढ़ना बंद कर देते हैं। तो इस अमल को इस्लाम में पसंदीदा अमल नहीं करार दिया गया, कि आप अगर पढ़ रहे थे, आप वो अमल कर रहे थे, तो आप वो अमल कंटिन्यू करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी नीयत देखनी है। ठीक है, तो हमने अपने उस अमल को, उस चीज को कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें अब वो जो रिवॉर्ड है, अगर हमने कोई भी काम अल्लाह की रजा के लिए किया है, जैसे हमने कोई भी सदका दिया है, हमने कोई भी किसी की मदद की है, कुछ भी किया है, तो हम उसकी एक्सपेक्टेशन उस इंसान से ना रखें कि वो हमें वो मतलब हमें राजी करेगा। जैसे हमारे यहाँ मोस्टली क्या होता है कि हमने घर पे क्लीनर्स रखे होते हैं, काम वाली रखी होती हैं। ठीक है, अब अगर हम सदका करना चाहते हैं तो हम उनको दे देते हैं। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ कि जब हमने सदका कर दिया, तो हमारे दिल में इनसाइड डीप में ये होता है कि यार ये जो है ना, अब ये काम सही करेगा, अब ये काम सही करेगी। तो अब हमारे अंदर क्या हो गया कि वो इंटेंशन हमारी ये हो गई कि हमने सदका इसलिए दिया कि वो हमारे जो नेक्स्ट जो है सफाई सही से करेगी, फर्श सही से चमका के जाएगी। हमारी ऑटोमेटिकली जो है वो उसके साथ एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं। अगर हमने उसकी बेटी की शादी थी, हमने उसकी हेल्प कर दी, तो नेक्स्ट डे वो आई, उसने काम सही से नहीं किया या छुट्टियां ज्यादा कर ली, तो हमारे माइंड में एक नेचुरल सी चीज है, मेरे माइंड में भी, आपके माइंड में भी, सबके माइंड में ये जाएगी कि यार मैंने तो उसकी इतनी हेल्प की थी, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, इतना अच्छा करती हूँ उसके साथ, लेकिन इन रिटर्न क्या किया उसने, छुट्टी कर लेती है, काम सही नहीं करती, काम चोरी करती है। तो हमारा ये रवैया नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा रवैया ये होना चाहिए कि हम उसकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ अल्लाह ताला से करें, कि हमने वो जो काम किया है वो हमने सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए किया है। ठीक है, तो वो हम अल्लाह ताला से ही जो है वो हम उसकी उम्मीद लगाएं कि अल्लाह ताला ही हमारा जो है वो इस चीज में अजर देगा, क्योंकि अजर देने वाला जो है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। उसके बाद हमने क्या करना है, रोजे में हमने जब इखलास है, ये तो आपको पता है कि हमने खाने से रुकना है, पीने से रुकना है, लेकिन ये बेसिकली क्या हो रहा है कि अल्लाह ताला हमारे साइकोलॉजिकल जो हमारा जो चीजें हैं उसके साथ डीलिंग कर रही है, कि हमने अपने आप को, हमारे सामने खाना मौजूद है, ठीक है, हमारे सामने पानी मौजूद है, हमें प्यास भी लग रही है, हमें भूख भी लग रही है, लेकिन हमने अपने आप को उस चीज से जो है वो रोके रखना है। हमने वो खाना नहीं खाना, हमने वो पानी नहीं पीना, और खाने पीने के अलावा
बाकी जितनी भी इस तरह की चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने जो है जिनसे मना किया है, आपने एक अच्छा इंसान बनना है, आपके अंदर एक गुड कैरेक्टर होना चाहिए, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल ऐसे ही आएगा कि आपको पता है कि आपने फलां शख्स को इस बात का ये जवाब देना है, लेकिन आपने नहीं देना, आपको पता है आपने ये जवाब देना है, इसका ये जवाब बनता है, आपको जवाब देना आता है, लेकिन अल्लाह ताला की रजा की खातिर आपने अपने आप पे कंट्रोल करना है। जैसे अबू बकर रजी तआला अन्हु का वाक़या आता है कि वो उनको कोई शख्स बातें सुना रहा था और अबू बकर रजी तआला अन्हु खामोशी से सुन रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ जो है वो बैठे मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, तो जब अबू बकर रजी तआला अन्हु ने जब हद से पार हो गई तो उनको कुछ तल्ख में जवाब दे दिया, तलखी में जवाब दे दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठ के चले गए। अबू बकर उनके पीछे गए, उनसे पूछा कि जब तक वो मुझे बातें सुना रहा था आप तब तक वहीं पे बैठे हुए थे और जैसे ही मैंने जवाब दिया तो आप वहां से उठ के चले गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक तुमने उसको जवाब नहीं दिया था तो फरिश्ते उसको जवाब दे रहे थे, लेकिन जब तुमने उसको जवाब दे दिया तो फिर वो वहां से फरिश्ते चले गए। तो क्या यहाँ से हमें क्या चीज सीखने को मिल रही है कि हमने अपने अंदर इतना कंट्रोल करना है कि हमें जो पता भी है, हम लेडीज में अक्सर ये चीजें होती रहती हैं कि किसी ने कोई बात कह दी या किसी ने कोई ऐसा बोल दिया तो हम उसको आगे से बोल देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे रोजे में हमें इस चीज की भी जो है वो एक्सरसाइज करनी है कि खाना हमारे सामने है, हमने नहीं खाया, इसी तरह जवाब हमें आता है लेकिन हमने नहीं देना। हमने अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल इस कदर लेके आना है। फिर उसके बाद हमने अपने अंदर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में अपनी अपनी खूबियों में अपना जेनरोसिटी शो करनी है, पेशेंस शो करना है, और हमने अपने दिल को सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए जो है वो खालिस करना है। तो जब हम ये सारी क्वालिटीज अपने अंदर ले आएंगे तो इसमें क्या होगा कि फास्टिंग जो है वो हमारे लिए एक शील्ड के तौर पे एक्ट करेगी, जो कि हमें सिर्फ गुनाहों से नहीं बचाएगी बल्कि हमें अल्लाह ताला से जो एक पनिशमेंट जो हमें आखिरत में अपने गुनाहों के बदले मिलनी है, अल्लाह ना करे हम सबको अल्लाह ताला बचाए उस सबसे, तो वो उसके भी अगेंस्ट एक शील्ड प्रोवाइड करेगी कि रोजे का अजर इतना ज्यादा है कि अल्लाह ताला जो है वो एक शील्ड बना देगा। जैसे वो शील्ड से मेरे हमेशा से जहन में वो एक हम लोग कमांडर सेफगार्ड के कार्टून देखा करते थे, तो उसमें वो एक जो नेक होती है उसके आसपास एक उन्होंने शील्ड सी बनाई होती है कि इसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का इसको तीर लगेंगे, कोई भी किसी किस्म का इसको अगर वो कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो क्योंकि उसके आसपास एक शील्ड डाल चुकी है। तो इसी तरह जब हम रोजा रख रहे होते हैं तो हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से एक शील्ड आ चुकी है जो हमें तमाम गुनाहों से और अल्लाह ताला की जो पनिशमेंट है उससे जो है वो बचाएगा। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने अपने आप को जो है वो ये चीजें हमने देख ली कि हमने किस तरीके से जो है वो अम, अम, अपने आप को बिल्कुल प्योर करना है, किस तरीके से बिल्कुल हर चीज से जो है वो बच के रहना है। तो इसी तरह आई थिंक आप एक स्लाइड पीछे कर दें, इसके बीच में एक और स्लाइड भी है। हमारे पास सूरह अल बयीना की आयत नंबर 98 आती है, ठीक है, सूरह आयत नंबर 5 आती है, सॉरी, कि हमने क्या करना है कि लर्न बेसिक्स ऑफ इस्लाम एंड ट्राई टू नो मोर अबाउट अल्लाह एंड बिलीफ ऑफ इस्लाम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या है कि हमें सूरत में क्या कहा जा रहा है कि हमने अल्लाह ताला ने क्या बताई है कि वो ईमान वाले कौन होते हैं कि वो अल्लाह ताला के अलावा किसी के साथ शिरक नहीं करते, अपने दीन के साथ, अपने रिलीजन के साथ जो है वो सिंसियर होते हैं, सच्चे होते हैं और सच के साथ जुड़े रहते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम फास्टिंग कर रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं, तो हमें ये चीजें तो पता है कि हमने ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है, हमने खाना नहीं खाना, हमने ये नहीं करना। एक और चीज है जो आप अपना इसको गोल बना लें कि जब आप रोजे रख रहे हैं, जब आप रमजान रख रहे हैं, तो रमजान में रोजे रख रहे हैं तो आप इस चीज को देख लें, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको इस चीज को बताया था कि आप इस्लाम की ट्रू जो अकायद हैं उसके बारे में भी स्टडी करें, ताकि जो है वो क्या होगा कि आपके जो अमाल हैं वो ज़ाया ना हो, बल्कि आपके जो अमाल हैं अल्लाह ताला जो है वो उसको उसके मुताबिक आपको अजर दे। अपने जितने भी अकायद हैं, जो बेस लाइन्स हैं, उनको ठीक करें, अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला से जो एक कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। फिर एक जो चीज़ होती है, हमने क्या करते हैं जब रमज़ान की हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम उसमें हमने बहुत से गोल्स बना लेते हैं कि यार मैंने ये भी करना है, मैंने ये नए काम भी करना है, ये नए काम भी करना है।
हैं। ऐसे नहीं करें कि अपने आप को बहुत सारे टू डूज के साथ बर्डन कर लें, बल्कि अपने आप को एक लिमिटेड इतना रखें कि जितना आप आसानी से कर सकें, क्योंकि हदीस में आता है ना कि आप पे आपके नफ्स का भी हक है। तो आप अपने आप को उतनी चीज़ों के साथ बर्डन करें जितना आप आसानी से कर सकते हैं, और उसके बाद ज़्यादा फोकस करें इस चीज़ पर कि आप जो गुनाह करते हैं या जो आपकी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ दें। हम इस चीज़ की तो कोशिश कर रहे होते हैं कि हमने ये नेक अमल करना है, अगर हम सुबह के अज़कार नहीं पढ़ते तो हमने पढ़ने हैं, अगर हम मिसवाक नहीं करते तो मिसवाक करनी है। लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम जो गुनाह कर रहे थे, हमने उन चीज़ों को भी अपनी लाइफ से निकालना है। कुछ लोग क्या समझते हैं कि यार ठीक है, अगर मैं नेकी काम कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं गुनाह भी कर सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना। कोशिश करें, अगर आपको म्यूजिक सुनने की आदत है, आप उसको ख़त्म करें। अगर आपको आदत है गीबत करने की, क्योंकि हम लड़कियों में हो जाती है, गॉसिप्स करना हमारी फेवरेट हॉबी होती है, आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालें। ठीक है, तो प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड कर दें। हमने अपने आप को जो है वो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल जो है वो निकालना है। जी जी, प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस आ रही है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से नरेशन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फास्टिंग पर्सन लीव्स हिज फूड एंड ड्रिंक फॉर मी, सो फास्टिंग इज फॉर मी एंड आई शैल रिवॉर्ड इट। कि जो रोजेदार बंदा है, जो रोजेदार पर्सन है, वो किसके लिए, वो अल्लाह ताला की रजा के लिए अपना खाना छोड़ रहा है, अपना पीना छोड़ रहा है। ठीक है, किसके लिए? अल्लाह ताला की रजा के लिए। तो अल्लाह ताला ने रोजे का बदला अहादीस में बताया ही नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये बताया है कि तुम रोजे की हालत में, तुम रमजान में अगर तुम ये अमल करोगे तो इसका इसका अजर जो है वो 10 गुना ज्यादा हो जाएगा, इसका अजर जो है वो 700 गुना ज्यादा हो जाएगा। लेकिन उस अमल का अल्लाह ताला ने बताया है, लेकिन रोजे का अल्लाह ताला ने नहीं बताया। जैसे जन्नत है, जन्नत के बारे में अल्लाह ताला ने थोड़ा सा कुरान पाक और हदीस में बता दिया है, लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी इंसान ने नहीं देखी है, हमारी सोच से बालातर है। तो जो चीज़ अल्लाह ताला जो है वो हमेशा से जिस चीज़ को, जो अल्लाह को पसंदीदा होती है, जो चीज़ होती है, अल्लाह ताला उसको जो है वो छुपा के रखा हुआ है, हमारे लिए एक सरप्राइज है कि हम उसको वो उस वक्त देखेंगे। तो हमारा जो रोजे का अजर है, रोजे का अजर भी अल्लाह ताला ने जो है वो छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। देखिए, अगर हमारे सामने खाना पड़ा है, हम कमरे में अकेले हैं, हमने रोजा रखा हुआ है, कोई भी नहीं देख रहा, हम लोग खाना खा लें, तो क्या है, अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। तो इसमें क्या होगा कि अल्लाह ताला की रजा के लिए हम रख रहे हैं, तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि रोजा मेरे लिए है। ठीक है, और इसका अजर जो है वो मैं ही दूंगा। तो उसके बाद जो है वो इसमें हमारे पास जो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की हम रजा के लिए अपने जो भी हमारी डिजायर्स हैं, हम जो भी चीजें हैं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जो है वो उस चीज को छोड़ें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो हमें इसका अजर इंशाअल्लाह ताला जो है वो आखिरत में हम देखेंगे अल्लाह ताला की दीदार की सूरत में। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक और हदीस आती है सही बुखारी की और सही मुस्लिम की, कि इब्ने आदम की जो हर हर जो उसका अमल है वो मेरे लिए है, वो उसके लिए है सिवाय रोजे के। ठीक है, हर अमल जो भी हम करते हैं, लाइक हम सलात अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने बोल दिया कि इसका ये अजर होगा, तुम ये करे उसका ये अजर होगा, सदका करे उसका ये अजर है। लेकिन रोजा अल्लाह ताला ने कहा है कि इब्ने आदम का रोजा जो है वो मेरे लिए है और इसका मैं ही अजर दूंगा। जैसे पहले सही बुखारी की हदीस थी, अब ये वाली जो हदीस है यह भी सही मुस्लिम में है कि अल्लाह ताला जो है वो हमें इस चीज का अजर देगा, क्योंकि इसके अंदर कोई शो ऑफ नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी जो है वो किसी किस्म का जो है वो आप रिया नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से जो है वो आपने अल्लाह ताला जो है वो इसका जो है वो अजर देगा। इसी तरह एक और मुझे हदीस अभी याद आ रही है हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु से, कि हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ना एक पूरी मुकम्मल लिस्ट होती थी मुनाफिकीन की। तो उसके अंदर जो है वो एक सहाबी उनके पास गए, उन्होंने पूछा कि आप प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मेरा नाम तो मुनाफिकीन में नहीं है? तो हल अना मुनाफिकीन, कि क्या मेरा नाम है उसके अंदर, क्या मुनाफिकीन में से हूँ? तो उन्होंने येस और नो में जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने क्राइटेरिया दे दिया। ठीक है, क्राइटेरिया देने में उन्होंने क्या दिया कि क्या आप खलवत में नेक अमल करते हैं, यानी जब आप अकेले होते हैं तो आपका जी चाहता है कि आप कोई नेक अमल करें, आप अल्लाह ताला को राज़ी करें।
नंबर 1 ये है। नंबर 2 कि क्या जब आप गुस्से को गुनाह हो जाता है, देखिए हम सब इंसान हैं, तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रिपेंट करते हैं, क्या उस पे शर्मिंदा होते हैं, क्या उस पे माफी मांगते हैं? अगर आप पे ये 2 क्राइटेरियाज हैं तो इट मीन्स कि आपके अंदर जो है वो शो ऑफ नहीं है, रिया नहीं है, बल्कि आप मुनाफिक नहीं है, आप सिर्फ जो है वो अल्लाह ताला की रजा के लिए करते हैं ये काम। तो आप लोगों ने भी ये क्राइटेरिया सेट कर लेना है कि अगर हमें भी कभी लगे कि अगर हमारे अंदर भी ये मुनाफ़िक़त तो नहीं आ रही, ये चीज़ तो नहीं आ रही, तो आपने ये 2 क्राइटेरियाज़ के थ्रू खुद को भी जज कर लेना है कि क्या जब हम अकेले होते हैं तो हमारा नेक अमल करने को जी चाहता है, और नंबर 2 कि अगर कोई गुनाह हो जाता है तो हम उस चीज़ के लिए अल्लाह ताला से रिपेंट करते हैं या नहीं। क्योंकि हम अगर सल्फ़ सालीन को स्टडी करें ना, तो ये हमारे जो रिया है और जो दिखावा है, इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ज़ीलत आती है कि वो जब नरेट कर रहे थे, हदीस की बुक्स लिख रहे थे, तो उनसे रिवायत आती है कि वो कहते हैं कि हमारा जी चाहता था कि हम इस अपनी रियाकारी वाली जो अहादीस है सारी, इनको बिल्कुल टॉप ऑफ द पेज पे लिख दें। वजह क्या है उसकी? सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है। ये शो ऑफ और ये चीज़ें ये नहीं होती कि बस आपने एक कोई अमल कर दिया, ये आपकी लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है। आपने होल लाइफ इसके ऊपर वर्क करना है कि कोई भी अमल करते हुए, किसी भी किस्म का अमल करते हुए, आपकी जो है वो इसके अंदर इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि आप उस बंदे को राज़ी कर रहे हो, बल्कि अल्लाह ताला को राज़ी कर रहे हो। हम अगर जो है वो शादीशुदा नहीं है, हम अगर पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनका ख़्याल रखते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए? हमारी रज़ा, पेरेंट्स तो खुश होंगे ही होंगे, लेकिन उससे बढ़ के हमारी रज़ा होनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला को राज़ी कर रहे हैं। हम ये ना सोचें कि वो फलाँ हमारे रिश्तेदार आएँगे तो वो सोचेंगे यार कितनी फर्माबरदार है। नहीं, हमारी क्या रज़ा होनी चाहिए? अल्लाह ताला की जो है वो रज़ा होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम शादी हो चुके हैं, हम अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर रहे हैं, हम अपने इन-लॉज़ के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारी जो इंटेंशन है, वो सिर्फ़ क्या होनी चाहिए? अल्लाह ताला की रज़ा। हम उनसे रिवॉर्ड एक्सेप्ट ना करें कि यार मैंने इतना अच्छा किया था और इन रिटर्न मुझे ये मिला। जब हम इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को करने लग जाएँगे तो फिर वो चीज़ जो है वो गलत हो जाएगी। जब हमारी नियत ये हो जाएगी कि हम रिवॉर्ड लोगों से लेंगे, तो वो चीज़ जो है वो इस चीज़ सही नहीं है। इस चीज़ की इस्लाम में जो है वो ममानियत है कि आपने सब काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है, सिर्फ़ रोज़े नहीं, बल्कि कोई भी दीन का काम। रोज़ा तो एक हमारी प्रैक्टिस है ना कि हमने अपनी प्रैक्टिस बनानी है। तो हमने कोई भी काम करना है, जब भी कुछ करना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है। प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है इबादत एंड अज़कार, कि हमने किस तरह से इस रमज़ान को जो है वो यूटिलाइज़ करना है। देखिए ये हमारे पास जो होती है ना ऑफ़र्स आती हैं, जैसे हम जहाँ भी देखें ड्रेसेस लेने होते हैं हमने, सेल्स लगी होती हैं, ठीक है? वो ऑफ़र्स आई होती हैं, उसका क्या मकसद होता है कि एक लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है? कभी-कभी आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाती हैं चीज़ें। तो इसी तरह जो रमज़ान का महीना है ना, आप इसको भी ऐसे ही समझें कि आपके पास ये जो है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, एक टेम्परेरी आपके पास जो है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये एक लिमिटेड ऑफ़र है। तो आपने इसको जितना आप कर सकते हैं, जितना एज़ पॉसिबल एज़ आपने इस चीज़ से फ़ायदा उठाना है, ठीक है? जैसे मैंने पहले बोला था, आपने अपने आप को टू डू लिस्ट से बर्डनाइज़ नहीं करना कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये काम नहीं करना। जितना काम करना है, अच्छे से करना है और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है। इबादत एंड अज़कार टू डू लिस्ट, कि हमने जो है वो किस तरह से इबादत करनी है, किस तरह से अज़कार करने हैं। हमने अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ नहीं कर देना। बहुत सी लिस्ट्स के साथ कि ये भी करेंगे, बल्कि बस जितना करना है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है और अच्छे से करना है, ठीक है? स्लाइड नंबर 10 शो करते हैं प्लीज़, जिसके अंदर टू डू लिस्ट आ रही है। टू डू लिस्ट ही शेयर हो रही है, मैं इसको स्टॉप करके शायद थोड़ा-सा ना कनेक्शन का प्रॉब्लम है, तो मे बी वो विजिबल है। शो नहीं हो रही, ठीक है? जी, आप बिल्कुल विज़िबल है, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमने टू डू लिस्ट में करना है, वो सबसे पहले ये करना है कि हमने अपने आप का एनालिसिस करना है कि हम अब कहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है? हम अभी इस वक़्त अगर हम अपने आप को दीनी लिहाज से देखें तो हम क्या कर रहे हैं?
ठीक है, हम किस जगह पे मौजूद हैं, हमारे तकवे का मयार क्या है, हमारे अमाल का मयार का क्या है, ठीक है। और इस चीज़ की ना आप अब यकीन करें कि हमारे जो है अब जिस हम माशरे में रह रहे हैं या जिस हम चीज़ में रह रहे हैं, तो इसके अंदर एनालिसिस की, सेल्फ एनालिसिस की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि हमने सेल्फ एनालिसिस को लाजमी करना है, क्योंकि ये तो सहाबा से भी आता है ना कि हमें उस चीज़ को भी वहाँ से भी जो है वो पता चलता है कि वहाँ पे भी वो लोग भी अकेले हो जाते थे, कुछ टाइम स्पेंड करते थे। और मी टाइम में क्या होता था कि वो इस चीज़ को जो है वो एनालिसिस करते थे कि यार हमारे लिए ये कितना ज़रूरी है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा गए, ठीक है, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जो है वो चले गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में कुछ अरसा रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो उनके बारे में आते रिवायात में कि वो दुनिया में जो है वो फिरते रहे, घूमते रहे, ठीक है। नूह अलैहिस्सलाम के से ज़्यादा किसी के भी फॉलोअर्स नहीं है, तो उनका दोस्त कौन था? सिर्फ अल्लाह ताला। तो मतलब यहाँ से इन सब चीज़ों से हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक जो टाइम होता है ना, जो हमारा मी टाइम होता है, जो हमारा स्पेस होती है, इसमें हमने इन चीज़ों को समझना होता है, हमने देखना होता है, अपना एनालिसिस करना होता है कि हम किस किस पॉइंट पे मौजूद हैं और हमें आगे अपने अंदर बेहतरी लाने के लिए मज़ीद क्या-क्या करना है, ठीक है? ये करने के बाद फिर आपने जो है वो अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी है कि जब आप सुबह उठेंगे तो आपने क्या-क्या करना है। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं कि आप अगर इन चीज़ों के ऊपर वर्क करें, जैसे मैं पहले इस पे बहुत बात कर चुकी हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपना रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ। फिर उसके बाद रोज़ाना कुछ ना कुछ सदका में ज़रूर दें, ठीक है? आपको पता है कि जो है वो सदक़े की कितनी ज़्यादा अहमियत है। तो आप अगर 1000 एक दिन में दे रहे हैं, तो मेरा जो है जितना मैंने स्कॉलर्स को रीड किया है या मैंने जितना इस चीज़ को समझा है, तो मुझे लगता है कि अगर आप 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ या जितने भी आपने स्पेसिफिक करने हैं, आप अगर वो रोज़ाना दें, तो उसका ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसी तरह अब जैसे लैलतुल कद्र आती है आखिर में, तो उसमें अब हमें आप पता है कि उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है, हज़ारों रातों से ज़्यादा उसका अजर है। तो क्यों ना हम इस तरह से कर लें कि हम हर लैलतुल कद्र पे कोई एक होनी है ना जो एक वो स्पेशल रात है, तो बजाय इसके कि हम एक दफ़ा ही सदका कर दें, हम उस सदके की नियत कर दें। तो क्या होगा कि जब अगर वही रात होगी लाइक 21st नाइट को मैंने 10 रुपीज़ सदका किए हैं, तो क्या होगा कि अगर ये तो अल्लाह ताला को इल्म है कि वो कौन-सी स्पेशल नाइट है, कौन-सी लैलतुल कद्र है। तो उसमें अगर जो है वो लैलतुल कद्र हुई 21st नाइट, तो मुझे उसका अजर बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह 23rd को, 25th, 27, 29 जितनी भी ताक रहते हैं, उनमें आप लोग जो है वो सदका करें। और बाकी वैसे डेली रूटीन में भी जो है वो इसकी आदत बनाएं कि आप डेली सदका करें। इसी तरह एक सुन्नत है मिसवाक है, आपको सबको पता है, लेकिन हमने अपनी लाइफ से इसको बिल्कुल निकाला हुआ है। तो कोशिश करें रमज़ान एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाएं अपना, ठीक है, कि आपने रमज़ान में स्टार्ट करना है मिसवाक करना। फिर उसके बाद आप इशराक पढ़ें, ठीक है। हमारी क्या रूटीन है, हम फजर पढ़ते हैं, फजर पढ़ी फ़ौरन मतलब बस नींद में ही पढ़ी और सो गए। कोशिश करें कि आप फजर पढ़ के सोएँ नहीं, बल्कि उसके बाद थोड़ी-सी कुरान पाक की तिलावत करें, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा-सा एरिया है कि जिसमें आप बाहर वॉक कर सकते हैं, बाहर वॉक करने जाएँ। अगर नहीं है तो बस वो एक टाइम है जो आप अपने साथ और अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ गुज़ारें, ठीक है। उसके बाद जब सूरज जो है वो तुलू हो जाता है, फिर आप 2 नवाफ़िल पढ़ लें। तो ये वाला जो टाइम है इसको गुज़ारें। फिर उसके बाद आप यूँ करें कि जब आपने रात को सोना है, तब आप अपनी रूटीन बना लें कि आपने वज़ू की हालत में सोना है, ठीक है? और फिर जैसे ही आप उठेंगे सुबह सहरी के लिए उठ रहे हैं, तो रूटीन बना लें, अपने वितर आप रात को छोड़ दें। रूटीन बनाएँ कि सुबह उठ के फिर कुछ नवाफ़िल पढ़ लें और फिर उसके बाद जो है फ़जर से पहले आखिरी जो सलात है वो वितर पढ़ लें अपनी, ठीक है? तो ये वाली जो चीज़ें हैं अपनी इस लाइफ़ के अंदर जो है वो शामिल करें। इसके अलावा अपने सुबह के अज़कार पढ़ें, शाम के अज़कार पढ़ें जो हमें हदीस से मिलते हैं। मतलब आप ये जो चीज़ें हैं ना जो छोटी-छोटी हैं, ये सिर्फ़ रमज़ान में करने की नहीं है, ये हर वक़्त करने की है। लेकिन क्या होगा कि रमज़ान को हमने अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है और जब हम रमज़ान में इस चीज़ को अपने अंदर इस हैबिट को डाल लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ वजल 1 महीना जब हम कंटिन्यूअसली इस हैबिट को करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी आदत हो जाएगी कि हमें ऐसा फ़ील होगा कि समथिंग इज़ मिसिंग। हम उस चीज़ को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से हम बाकी भी दिनों में कोशिश करेंगे कि वो करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में आता है कि नॉट टू डू लिस्ट, कि अब हमने ये इन चीज़ों पे तो देख लिया कि हमने क्या-क्या करना है, हम लेकिन अब उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने छोड़ना भी है, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर क्या चीज़ आती है कि हमने अगर देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हम
हमारे कुछ जानने वाले होते हैं। इस चीज की हदीस में बहुत ज्यादा अहमियत आई है सिला रहमी की, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपने आप को अल्लाह की रजा के लिए सिंसियर करके हम न हमारे जिसके भी दिल में जिस जिस इंसान हमारे जो है वो अच्छे अगर रिलेशनशिप नहीं है, तो हमने कोशिश करनी है कि हमने उसके रिलेशनशिप पे उसके साथ रिलेशनशिप पे वर्क करना है, ठीक है। कि हम जो है वो उसके साथ रिलेशनशिप पे वर्क करें और उस प्लीज अपनी प्लीज हाफिज अस्मा की आवाज आ रही है, प्लीज आप म्यूट कर दें अपना माइक। तो हमने क्या करना है कि हम जितने भी जानने वाले हैं हमने उनके साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा बनाना है, ठीक है। हमने ग्रजेस होल्ड नहीं रखने। हम इस रमजान का मौका जो है वो इससे फायदा उठाएं। अगर हम किसी भी है जिसको हम माफ नहीं कर सकते, जिसने हमारे साथ गलत किया है, जो भी किया है, हम क्या करें, कोशिश करें कि उनके साथ हम अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं, ठीक है। उसके बाद इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सदके के हकदार होते हैं, लेकिन हम अपनी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, हम अपने इनर सेल्फ की वजह से उनको सदका नहीं दे रहे होते, बल्कि हम कहीं और कर रहे होते हैं। तो इस चीज को भी आप समझें कि जो हमारे करीब के लोग हैं ना, वो हमारे सदके के ज्यादा हकदार हैं। तो अपने ग्रजेस के चक्रों में ऐसा ना करें कि आप उनको जो है वो उनके साथ अच्छाई ना करें। तो ऐसा नहीं करना। अपने उन ग्रजेस को खत्म करके सिर्फ किसकी खातिर, अपने रब की रजा की खातिर तमाम ग्रजेस को खत्म करना है, चाहे वो जैसा भी करें। मैंने पहले भी बताया कि आपने इस अच्छा की उम्मीद उस इंसान से नहीं रखनी, आपने अल्लाह ताला से रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो रमजान की बरकत है, इस ये जैसे एक लिमिटेड टाइम ऑफर है ना, आपने इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। जैसे अब हमारे पास समर सेल्स होती हैं, विंटर सेल्स होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा उसमें ड्रेसेस ले लें हम, ताकि वो जो ड्रेस हमें पसंद था, जो हम उस वक्त नहीं ले सके जब उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, अब हम सेल में ले लें। तो इसी तरह रमजान में भी क्या करना है कि आपने उसकी बरकत से जो है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है, ज्यादा से ज्यादा नेकियां करनी है, बजाय इसके कि आप उसका टाइम वेस्ट करें। इसमें जैसे अब हमारे यहाँ क्या होता है, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा ये चीज देखी गई है कि गेम शोज निकाल दिए गए हैं, ठीक है, रमजान में, जिसका दीन से कोई भी ताल्लुक नहीं है। बल्कि और भी क्या होता है कि गेम्स खेल रहे होते हैं, तो उसमें भी गेम्स में भी यही आ रहा होता है कि आर यू फीलिंग टायर्ड, आर मतलब जो एंग्री बर्ड्स कितनी फेमस गेम है, उसके अंदर भी क्या आ रहा है कि उसका ऐड भी क्या आ रहा है कि आपको भूख लग रही है, सो लेट्स प्ले एंग्री बर्ड्स। आपको रमजान मतलब उसका रमजान वर्जन आया है सिर्फ इसलिए कि आप अपने आप को इन्वॉल्व करें, कि आपका उधर खाने की भूख लग रही है, प्यास लग रही है, या आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो ये गेम खेलें। वो उनकी प्रमोशन स्ट्रेटेजी है, लेकिन हमें उस चीज को समझना है कि हमने उसके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, बल्कि हमने अपने उस टाइम को जो है वो यूटिलाइज करना है। अगर हम स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, तो क्या जॉब कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी वर्क प्लेस की या हमारी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग कम हो जाती है, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं होती है कि हम अपना टाइम इधर जो है वो लगाएं, बल्कि वो इसलिए हो रही है ताकि हम उसको अपने दीन के साथ लगाएं, ठीक है। तो आप और दूसरा इसमें मुझे एक और बात भी समझ में आ रही है कि अक्सर क्या करते हैं कि हम लोग ही दूसरों का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि रमजान का मुसलमान है सिर्फ। बिल्कुल ऐसे नहीं करें। अगर कोई नेकी काम कर रहा है, चाहे वो जब भी स्टार्ट कर रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करें कि वो भी तो लोग हैं जो जुम्मा भी नहीं पढ़ते, जो रमजान में भी बिल्कुल दीन को अहमियत नहीं देते। तो एटलीस्ट वो लोग बेटर हैं जो रमजान में जो है वो अल्लाह ताला की रजा की खातिर कर रहे हैं। मैं अल्लाह नोस कि कौन सा किसका टर्निंग पॉइंट है। हमने मतलब किसी को भी जज नहीं करना, ठीक है। तो हमने उसकी बरकत से ज्यादा फायदा उठाना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ रही है कि हमने अपने आप को टाइम वेस्टर से बचाना है। भी सॉरी, लास्ट लाइन ही चलेगी। टाइम वेस्टर से बचाना है कि यानी कि अपने गेम शोज और इन चीजों से तो बचाना ही बचाना है। उसके बाद जितनी भी चीजें हैं, अगर हमें कोई इनवाइट कर रहा है कि यार आज मतलब रमजान में टाइम होता है, ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो आज हम यहाँ चलते हैं, फ्रेंड्स कह रही हैं क्या हो यहाँ पे लंच पे चलते हैं, तो ये टाइम वेस्टर्स हैं ये चीजें, ठीक है। हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने इन सब चीजों से जो है वो अपने आप को दूर रखना है। इसी तरह रमजान में एक अच्छी बात है कि हम लोग दावतें भी करते हैं, अफ्तारी भी करते हैं, लेकिन उस चीज को भी लिमिट कर दें, क्योंकि इसको भी मैंने देखा है कि लोगों ने बहुत ज्यादा इस तरह से बना लिया है कि एक रस्म बना ली है कि बस सबको इनवाइट करना है, और बहुत ज्यादा मतलब खवातीन का तो सारा टाइम इस अफ्तारी बनाने में और प्रिपरेशन में गुजर जाता है। बहुत अच्छी बात है दावत करना,
सब कुछ करना, लेकिन उसको भी, दावत को भी सुन्नत के मुताबिक किया जाए। अब उसमें ये नहीं है कि आप अपना सारा टाइम ही उसमें यूटिलाइज कर रहे हैं और जो मेन मकसद है, जो इबादत है हमारी, वो ज़ाया हो रही है। तो हर चीज़ को एक लिमिट में रहते हुए जो है वो आपने करना है। इसके अलावा किसी भी तरह की आपको हराम क्रेविंग्स हैं, एडिक्शंस हैं, लाइक म्यूजिक की आपको क्रेविंग है कि आप म्यूजिक सुनना होता है, ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो म्यूजिक लगाना है, तो अपने आप को जो है वो इन चीज़ों से बचाएं। किसी किस्म की एडिक्शन है, ठीक है, एडिक्शन वो चीज़ होती है जो हराम नहीं होती है, लेकिन उससे हमारा टाइम ज़ाया होता है। जैसे गेम्स हैं, कुछ मोबाइल ऐप्स में गेम्स आती हैं, वो हराम बिल्कुल नहीं है खेलना, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, हम अपने आप को उस चीज़ के साथ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमने इन्वॉल्व कर लिया है। तो कोशिश करें कि जब हमारा टाइम है, जो हम, अगर वो चीज़ अल्लाह ताला के बीच में और हमारे बीच में आ रही है, तो हमने कोशिश करनी है कि उस चीज़ को जो है वो अवॉइड करना है। फिर उसके बाद लास्ट जो चीज़ आती है कि सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आपने कोशिश करें कि इसका टाइम जो है वो आप एक, बल्कि मोबाइल्स में एक एप्लीकेशन भी आती है डिजिटल वेलबींग के नाम से, ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, आपका टाइम नोट हो रहा होता है, नोट डाउन हो रहा होता है कि आपने फिलहाल एप्लीकेशन कितना टाइम यूज़ की। कोशिश करें कि उसका आप टाइम सेट कर दें कि इसके बाद आपने एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। अभी तो फेसबुक है, फेसबुक पे रील्स आ जाती हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम का। टिकटॉक है, वीडियोस देखते जाते हैं, देखते जाते हैं। और मजे की बात यह है कि हम कह भी रहे होते हैं कि यार कितनी गलत बात है, कितना ये गलत वीडियो बनी हुई है, ये कितना गलत है, लेकिन हम देख भी रहे होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें अपना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। अगर हम सोशल मीडिया को यूज भी कर रहे हैं तो अच्छे पर्पस के लिए यूज करें, ठीक है। उसको जो है वो अल्लाह ताला की रजा के लिए यूज करें, और उसके बाद जो है वो अपने टाइम को अल्लाह की रजा के लिए दीन की तरफ यूटिलाइज करें, सोशल मीडिया को भी और अपने टाइम को भी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसके अंदर कि हमने कुरान पाक को कितना रीड करना है, ठीक है। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि कुरान पाक को कितना रीड करना है। इसमें यहाँ पे जितना मुझे स्कॉलर्स से समझ आई है, उसमें क्या करना है कि अब हमारे यहाँ क्या होता है कि मैं उस चीज़ को मतलब डिनाई नहीं कर रही हूँ कि आप लोग कुरान पाक के वो जो पूरे पूरे कुरान पाक के 3-3 4-4 मंजिलें पूरी पूरी पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, मैं उस चीज़ को नहीं कर रही, वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन आप कोशिश करें कि आपने जितना भी पढ़ा है आप उसको समझें। अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हो, तो मैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट से भी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अगर वो भी मुझे आंसर दे सकते हैं तो प्लीज आंसर दें चैट बॉक्स में या म्यूट ऑफ करके। कि आपके पास अगर 2 ऑप्शंस हो कि आप सूरह, फलां सूरत है, कोई भी सूरत कर लें, ठीक है, आप उस सूरत को तर्जुमे के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें, उसको समझें, ठीक है। सूरह माइदा कर लें, आपने उसको पढ़ना है, समझना है, उसके अंदर जितनी पर्दे की आयत है उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। आप ये वाला काम करेंगे या आपने 2 दफा पूरा कुरान पाक खत्म करना है। आप इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको लगता है कि बेटर है, ठीक है। एक का जवाब आया है कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेस्ट है, ठीक है। तो जी एक और शैला ने भी जवाब दिया है कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ट है, ठीक है। तो ये यही वाला कंसेप्ट जो है वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आपके लिए जो वो बात है आप उसको समझें, आप दूसरों को कन्वे करें। मिसाल के तौर पे आपने कोई कुरान पाक की एक आयत पढ़ ली, ठीक है, उसके बाद आपने उसके ऊपर अमल किया, उसको दूसरे को भी बताया कि इस पे अमल करो। लाइक मैंने पर्दे की आयत पढ़ी, मैंने उसको समझा, ठीक है। मैं मुन्ना और हफ्सा भी कह रही है कि अंडरस्टैंड करके पढ़ना बेहतर है, तो ठीक है। ये यानी कि ये वाला कंसेप्ट हमें क्लियर हुआ हुआ है कि मैंने पर्दे की आयत पढ़ी, मैंने पर्दा अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, उसको समझा, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, अपनी फ्रेंड को बताया कि यार हम हिजाब करना शुरू कर देते हैं। तो ये फॉर मोर बेटर है, बजाय इसके कि हम पूरा पूरा कुरान पाक पढ़ते रहे, एक रेस लगे, अपने माइंड को जो है वो हमने बर्डनाइज किया हुआ है कि यार रोज हमने एक एक पारा पढ़ना है, एक पारा अगर हमने छोड़ दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और मतलब इस तरह से कुछ लोग एक रेस में लगे होते हैं। तो कोशिश करें कुरान पाक को जितना पढ़ें समझ के पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें, जिसकी मर्जी स्कॉलर की पढ़ें, बस उसको समझें। कुछ भी नया कुरान पाक से जो है वो समझने की कोशिश करें। कुरान पाक को सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ने लग जाए, अगर तर्जुमे से भी पढ़े हैं ना तो उसकी एक एक आयत को समझने की कोशिश करें। उस आयत को पढ़ के ये ना समझे कि यार ये आयत हमारे लिए नहीं है, ये तो पुराने जमाने के लिए, नहीं, उसके अंदर हमारे लिए भी सबक है, ये सबक आपने खुद ढूंढना है, ठीक है। इसको भी करें, उसके ऊपर अमल करें,
پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ کچھ قرآن پاک کی سورت ہیں، جیسے اب قرآن 30ویں پارے میں آتی ہیں سورت، ہم میں سے موسٹلی لوگوں نے کیا کیا تھا بچپن میں اس کو میمورائز کیا تھا، لیکن ہم نے کیا کر دیا اب اس کو بھول گئے، اب ہمیں وہ یاد نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ قرآن پاک کی جو ہے وہ جتنی بھی قرآن پاک کی سورات ہیں ہم اس کو یاد کریں۔ پھر اس کے بعد رات کو جب ہم نوافل پڑھیں، تراویح پڑھیں، کوشش کریں کہ اس کے اندر ہم اس کو خود زبانی ریسائٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے اس کے اندر کوئی بھی سورہ زلزلہ زلزالہ یاد کی ہے، ہم نے سورہ کوئی بھی سورت کا فریز بھی، بلکہ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ اگر کچھ سورت کا کچھ آیات ہوتی ہیں جیسے سورہ ال عمران کا آخری رکوع ہے، اس کے اندر بہت ساری دعاز ہیں، آپ اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سورہ ناس یاد کی ہے، چاہے چھوٹی صورت ہے چاہے بڑی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش دیکھنی ہے، ہم اس کو یاد کریں اور ہم اس کو تراویح کے اندر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک لاسٹ پوائنٹ ہے، میں ایڈ کرنا بھول گئی ہوں سلائڈس میں، کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی جو نمازیں ہیں اس کو بھی اپڈیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ ہم حدیث کی اگر بکس پڑھیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں، بس سبحانک اللہم سے پڑھ کے ہم ربی جلنی تک ایسے ہی رٹی رٹائی طوطے کی طرح جیسے میں بچپن سے پڑھائی گئی تھی، ہم بالکل ویسے ہی صلاۃ ادا کریں ابھی تک۔ کوشش کریں اس کو جو ہے وہ چینج کریں، سبحانک اللہم کی جگہ ایک اور حدیث میں بھی جو ہے وہ دعا آتی ہے اللہم باعث بینی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کوشش کریں کہ وہ والی یاد کریں۔ اسی طرح ہر دفعہ سورہ اخلاص کی جگہ کوئی اور سورت پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے جو ربی جلنی کی جگہ کوئی اور دعا پڑھیں، اپنی نمازوں کو بھی جو ہے وہ اپڈیٹ کریں، اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ رمضان کو بنا لیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ تو اب یہاں تک ہم نے یہ 3 چیزیں سمجھ لی۔ سب سے پہلے ہم نے اخلاص، سنسیریٹی دیکھ لیا، ہم نے عبادات دیکھ لی، ہم نے قرآن پاک دیکھ لیا، یہی میرے آج کے ٹاپکس تھے۔ تو اب جو ہے وہ میں اپنی جو بات ہے اس کا اختتام کرنا چاہوں گی ایک آخری بات سے، جو ہے کنسسٹنسی، ٹھیک ہے۔ آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Take up good deeds only as much as you are able, for the best deeds are those done regularly even if they are few. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہاں سے کیا سنن ابن ماجہ کی حدیث سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ اپنے اوپر اتنا ہی جو ہے وہ گڈ ڈیڈز کریں جتنا آپ قابل ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ اب آپ نے بالکل ہی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، لیکن اپنی دیکھیں کہ آپ کتنا کر سکتے ہو، آپ کی نفس کتنی اجازت دیتا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ ہم ان کے چکر میں ہم راتوں کو بھی نہ سوئیں، ہم دن میں بھی نہ سوئیں، اور بس نیک اعمال کرتے رہیں اور ہماری صحت جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ اتنا ہی عمل کریں جتنا کر سکتے ہیں، اس کے بعد اس کو کوشش کریں کہ ہم لگاتار کریں، صرف یہ نہیں کہ رمضان میں کریں، ٹھیک ہے۔ میں ان لوگوں کو بالکل نہیں کر رہی کہ جو صرف رمضان کے مسلم کے نام سے جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، میں ان کو بالکل ڈیگریڈ نہیں کر رہی، اچھی بات ہے، وہ لوگ کوشش کریں، لیکن آپ لوگ کوشش کریں کہ رمضان کو سٹارٹنگ پوائنٹ بنا کے اپنے جتنے بھی اعمال جو ہے وہ کر رہے ہیں اس کو اپنی عادت بنا لیں کہ رمضان کے علاوہ بھی آپ نے وہ تمام اعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان جو آ رہا ہے ہمیں نصیب کرے، کوئی پتہ نہیں ہوتا لائف کا، تو انشاءاللہ آئے اور ہمیں بہت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ سیمی سسٹر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو نشان اجر عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہمارا ٹرننگ پوائنٹ بنا رہے زندگی کا۔ ایک پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہوں گی جو آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، جو بالکل لاسٹ سلائڈ، سیکنڈ لاسٹ سلائڈ میں تھا، تو میں ایک دفعہ پڑھ رہی تھی، تو پتہ نہیں وہ میں نے کہیں پوسٹ پڑھی یا کہیں شاید کوئی ویڈیو تھی جس میں اسکالر ابھی مجھے نہیں یاد، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہر نصاب پڑھتے ہیں لیکن کوئی ایسا نصاب نہیں جس کو ہم لوگ انڈرسٹینڈنگ کے بغیر پڑھتے ہیں، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جو آج کا مومن ڈھیر دفعہ اس کو ختم کرتا ہے لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ پہ کبھی فوکس نہیں کرتا، اور وہ اسی حالت میں جو ہے وہ اپنی اس جہاں فانی سے جنم پوچھ کر جاتا ہے۔ تو ہمیں سب سے بیسیکلی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ پہ کام کرنا ہے، اور اس رمضان کو وہ ٹرننگ پوائنٹ بنانا ہے کہ ہم اپنی قرآن کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہیبٹ کے طور پہ ڈیولپ کر سکیں کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ لے سکیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔